Everybody, topic in office automation subject is about searching informations on internet. So this is a very usual medium, internet, through which in today's 21st century now every business, education or any activities is incomplete without internet. We have already known that wides and varieties of work now are able to be completed through internet. You all need to have a internet connection in your mobile phone or internet connection in your laptops through Wi-Fi. Then you can do multiple works. If you are related with business, then payments, designings, office documents and other kinds of works may be done very easily through internet. So internet is in today's time very much necessary and compulsory for every persons, whether they belong to any kinds of field. Example, for the field of educations, we use internet for taking lectures. We take internets for the purpose of making different documents. Different office documents are being made and transferred from one place to another place through internet. So in today's time, even a common man is able to search any kinds of informations through internet. There are specific search engine which are available through which you can search different kinds of websites, different kinds of informations. Web pages are available. These web pages are available in millions or it's available in billions. So you can't imagine that how much amount of web pages, websites or the informations are already been stored through internet. Right? We are been seeing that in every field, in every sector, technology is changing, internet is useful there. If we take example of a field of medical professional, then internet is really helping them in finding specific articles related to medical fields, articles related to different medicines, different informations on medicals are available through internet. So in today's time, internet has become a very useful medium through which you can search any kinds of informations of your choice, whether you belong to different categories of interest are there. If you are a sports personality, if you play cricket, if you are related with cricket, you are a cricketer, then internet is going to help you. Right? Through internet you can find lot more informations related to sports field. We are having amples of informations related to different players. We are having amples of informations related to crickets in internet. If you belong to art, then there are informations related to art in websites, different web pages in internet. So internet in today's time has become very useful and advantageous, that everybody has become very habituated with internet. Without internet we cannot imagine our life, because starting from early morning to sleeping at late night, we require internet for lot more activities. Let's take example of social activities, social interactions. There are social networking sites which we are using
for the purpose of remaining contact with other peoples. So we can say internet has become a very advantageous for people. Peoples are using internet for wides and varieties of activities. Searching informations on internet means you are searching informations related to any companies, you are searching informations related to any specific categories like sports, movies, arts, railways, bus transport system, government institutions, metro cities, different countries, about world, different sort of informations you can find it out through internet. So searching means when you are new to the internet, when you does not know which are the specific websites that is for any particular colleges. Let's take example of a student. When they search any colleges, when they are new, when they have just taken admissions in a college, or it is thinking to take admission in a college, before that she searches websites of any colleges through internet. She searches different websites or different informations related to that institutions or college, and it finds out who are the faculties, what is the resources, what are the facilities which college is going to give. So everything is possible with the help of internet. You can find basic informations of any field or any sectors with the help of internet. So searching information on internet means there are free websites, there are search engines that enables to search any web pages, websites from the internet. So searching informations on internet is very easy in today's time because it takes a few seconds to find any kinds of websites or informations. Search engine. What do you understand by a search engine? Search engine is a software program which helps you in finding websites, web pages and internet files. So search engines are generally a software through which putting any kinds of informations in that search engine will start finding out millions of pages across the globe, and it will able to find out an efficient informations which is required for a person's for the purpose of doing any kinds of work, right? So for example, a student, if she searches different colleges, the best colleges in India, or she searches best colleges in Gujarat or best colleges in Saurashtra region through a search engine. One example we can give, that is of Google. Google is the most popular search engine in today's time. We don't find any other search engine in the world which is as effective as Google, because Google has got multiple, or it has got amples of informations in its software or in its server. So Google is a search engine which provides you wides and varieties of informations on any particular field. So a search engine means, a search engine is generally a kind of a software which helps you in finding websites, web pages and internet files, right? So for a new person, suppose मैं
जनरली मुझे इंटरनेट के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है, मुझे कोई कंपनी की वेबसाइट्स के बारे में जानना है पर मुझे उस कंपनी की वेबसाइट्स के बारे में पता नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो मैं गूगल में जाके टाइप करूँगा उस कंपनी का नाम, तो अगर उस कंपनी की कोई वेबसाइट होगी तो वो वेबसाइट्स सबसे पहले खुल के आपके सामने आ जाएगी, उसका वेब पेज खुल जाएगा और उसका वेब एड्रेस खुल जाएगा। गूगल में नीचे आप देख सकते हो कि कितने सारे वेब पेजेस गूगल ने सर्च करके 1 सेकंड या 2 सेकंड के अंदर वो मिलियंस ऑफ पेज आपके सामने ला के रख देगा। जो भी आपको जो टॉपिक के बारे में आप इंफॉर्मेशन सर्च करना चाहते हो उसके उसके बारे में आपको मिलियंस एंड मिलियंस पेजेस ऑलरेडी है इंटरनेट में जो आप पढ़ सकते हो, देख सकते हो। तो इट इज़ वेरी इजी इन टुडेज टाइम। जिनको कुछ पता नहीं हो, क्योंकि एवरीबडी इज़ नॉट परफेक्ट इन एवरी फील्ड। मैं अपनी बात करूँ तो आई मे बी परफेक्ट इन मैनेजमेंट बट आई मे नॉट बी परफेक्ट इन इलेक्ट्रॉनिक्स, आई मे नॉट बी परफेक्ट इन इलेक्ट्रिकल्स, आई मे नॉट बी परफेक्ट इन एनी अदर फील्ड। कोई भी एक पर्सन्स के पास एक स्पेसिफिक टैलेंट होता है, स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन होता है। आप लोग मैनेजमेंट स्टूडेंट हो, इट मीन्स योर स्पेशलाइजेशन इज योर मैनेजमेंट स्टूडेंट्स। इट मीन्स यू आर knowing managements but you does not know electronic, and a person who is in the field of electronic will not be able to know managements. So a person may be expert in a specific field। हर कोई हर चीज़ में एक्सपर्ट नहीं होता है, मगर हाँ गूगल एक ऐसा सर्च इंजिन है जो हर चीज़ में एक्सपर्ट है। इट इज़ गोइंग टू फाइंड यू एनी काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर मुझे इलेक्ट्रॉनिक के बारे में जानना है देन आई कैन फाइंड इट आउट थ्रू गूगल। गूगल में टाइप कर सकता हूँ टॉपिक का नाम, उसमें मेरे को सब कुछ मिल जाएगा। सो एवरीथिंग इज ईजी थ्रू गूगल बिकॉज गूगल इज अ सर्च इंजिन विच विल प्रोवाइड यू एम्पल्स ऑफ इंफॉर्मेशंस विच इज़ बीन प्रेजेंट ऑल ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट में जितनी भी इंफॉर्मेशंस है, जिस इंफॉर्मेशन कौन से रूप में स्टोर है, कई इंफॉर्मेशन पीडीएफ के फॉर्म में इंटरनेट पे होगी, कई इंफॉर्मेशंस वेबसाइट के थ्रू होगी, कई इंफॉर्मेशंस वीडियोस के थ्रू होगी। जो भी इंफॉर्मेशंस वो टॉपिक के रिलेटेड होगी वो गूगल आपको सर्च करके बता देगा। गूगल 1-2 सेकंड आपके लेगा और 1 सेकंड के अंदर वो मिलियंस ऑफ चीज़ें सर्च करेगा। दैट्स वाई वी कैन से गूगल इज़ द बेस्ट सर्च इंजिन इन द वर्ल्ड इन टुडेज टाइम। कोई मुकाबला नहीं है गूगल का। अगर फर्स्ट रैंक देना चाहते हैं तो वी कैन गिव गूगल इज़ ए कंपनी और गूगल इज़ ए सर्च इंजिन विच इज़ एट द फर्स्ट रैंक, क्योंकि उनके पास इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। एवरीथिंग यू कैन गेट इट। आपको इंडिया से कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इंडिया लिख के कोई इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं सर्च कर सकता हूँ द बेस्ट कंपनी इन इंडिया, टॉप 10 प्राइवेट कंपनीज इन इंडिया, तो टॉप 10 प्राइवेट कंपनीज आपको गूगल में मिल जाएगी। आपको किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है। सो इन टुडेज टाइम अगर आपको कोई चीज़ के बारे में नहीं पता है, इट इज़ वेरी इजी, यू कैन फाइंड इट आउट इन गूगल, राइट। आपको कहीं किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे इंफॉर्मेशंस नहीं है, देन इट इज़ वेरी इजी, यू कैन गो टू गूगल एंड यू कैन फाइंड इट आउट इंफॉर्मेशंस। गूगल्स खाली इंफॉर्मेशन सर्च करने के लिए भी नहीं है। गूगल का काम एक ऐसा भी है कि आप जो जानते हो वो सही है या गलत है वो आप चेक कर सकते हो गूगल में, राइट। आप कोई स्पोर्ट्स पर्सनालिटी हो, आप कोई फिटनेस एक्सपर्ट हो, सपोज आप कोई फिटनेस एक्सपर्ट हो, आप अपने आप को समझते हो कि यू आर परफेक्ट इन डूइंग एनी काइंड्स ऑफ एक्सरसाइज,
पर एक बार आप अगर गूगल में सर्च करके देख सकते हो तो यू कैन फाइंड इट आउट द करेक्ट वे ऑफ डूइंग एन एक्सरसाइज। तो किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है, यू डोंट हैव टू गो टू एनीवेयर, बट इट्स वेरी इजी। फ्रॉम गूगल you can find it out any kinds of information which is been there. So search engine is a software program which helps you in finding websites, web pages and internet files. Search engines are helpful in searching information. Now the next topic, that is what are different types of search engine which is available. So first one, that is Google. Google is ranking first in search engine. Google has got a specific headquarters. एक मैं गूगल की खासियत ये बताता हूँ, why it has become so much popular. पॉपुलर तो इसलिए भी हुआ because it is giving one of the best result, or you are going to get the large informations out of a one single search engine. आपको कोई और सर्च इंजन की ज़रूरत ही नहीं है, यू कैन फाइंड इट आउट इन गूगल। तो गूगल की एक खासियत ये है कि गूगल जो मेन उसका हेड ऑफिस है वो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए इन गूगल ऑफिस और इन गूगल हेडक्वार्टर्स, आपको यकीन नहीं होगा, गूगल्स आर पेइंग 500 to 1,000 crore ऑन एम्प्लॉयज़ वेलफेयर। गूगल के आप हेडक्वार्टर्स में जाओगे तो वहाँ कोई बाउंडेशन नहीं है कि यू हैव टू वर्क, वहाँ कोई टाइमिंग आवर्स नहीं है। जैसे कोई साधारण कंपनीज में आप जाओगे तो हर चीज़ का टाइम है, ऑफिस आवर है 10 to 6 या 10 to 5, ये एक ऑफिस आवर्स होता है। बैंक्स में जाओगे तो वहाँ भी एक ऑफिस आवर्स होता है। उस ऑफिस आवर्स में डिफरेंट एम्प्लॉयज़ विल कम एंड इट विल डू जॉब। मगर गूगल में ऐसा कोई टाइमिंग नहीं है। गूगल में आपको लगेगा कि अभी आपका मूड नहीं है काम करने का, देन यू आर फ्री। गूगल में आप जाते हो, आपको लगता है कि अभी आपका मूड नहीं है काम करने का, तो वहाँ पे रेस्टोरेंट है, वहाँ पे जाके आप चिल आउट कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि इस टाइम पे आपको काम नहीं करना है तो आप वहाँ पे गेम पार्लर है, आप गेम्स खेल सकते हो। आपको लगता है कि अभी आपको स्विमिंग करनी है, देन स्विमिंग पूल इज़ अवेलेबल इन गूगल। आपको लगता है कि आपको वॉकिंग करनी है तो गूगल हैज़ गोट ए वेरी लार्ज कैंपस, लार्ज गार्डन वेर यू कैन वॉक। आपको लगता है कि आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है कि आप घर में भी टाइम आपको देना है आपके बच्चों के ऊपर, तो आप अपने बच्चे गूगल हेडक्वार्टर्स में ला सकते हो। वहाँ पे गूगल विल टेक केयर ऑफ देम। वहाँ पे इतनी सारी एक्टिविटीज़ हैं, दे विल डू। इवन गूगल प्रोवाइड्स लॉन्ड्री सर्विसेज टू इट्स एम्प्लॉयज़। आप वहाँ पे अपने गंदे कपड़े छोड़ के चले जाओ, शाम को जैसे ही गूगल से बाहर निकलोगे आपको प्रेस किए हुए कपड़े मिल जाएंगे। तो इतनी सारी फैसिलिटीज़ अगर कोई कंपनीज दे रही है अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, तो वो एक्सपेक्ट ये भी करती है कि उनके जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो वर्ल्ड के बेस्ट एम्प्लॉयज़ हो टैलेंट में, क्योंकि बिना टैलेंट के तो गूगल विल नॉट हायर यू। ऐसा कहा जाता है कि हर 30 सेकेंड्स में ऑल ओवर द वर्ल्ड गूगल रिसीव्स 1 एप्लीकेशन फॉर जॉब। गूगल इतना पॉपुलर है कि हर 30 सेकंड में कोई ना कोई गूगल में काम करना चाहता है, उसके लिए उसको एप्लीकेशंस आती है which is an eligible person. So you can believe that how much big, large and creative Google is, because it is giving a quality results. उसका सर्च इंजन एकदम फास्ट है,
एकदम कन्वीनियंट है। इंफॉर्मेशन जो भी रिसीव्स होती है दैट इज ऑथेंटिक, you will get the specific informations. So Google is the most popular search engine in the world. Other important advantage for the Google is a person who is a beginner, कोई भी नया पर्सन है जिसको इंटरनेट के बारे में कोई भी नॉलेज ना हो, तो गूगल में कोई भी इंफॉर्मेशंस डाल सकता है। आजकल को तो गूगल ने अपने आप को इतना चेंज कर दिया कि आप कोई भी इंफॉर्मेशन गुजराती में भी लिख सकते हो, कोई भी इंफॉर्मेशन गुजराती में भी आपको मिल जाएगी, हिंदी में भी मिल जाएगी, मराठी में भी मिल जाएगी, बंगाली में भी मिल जाएगी, कन्नड़ में भी मिल जाएगी, तमिल में भी मिल जाएगी। सो हर एक कंट्रीज़ की अपनी लोकल लैंग्वेज में गूगल ने अपने आप को डाल लिया है, तभी इतना पॉपुलर है। हम कहते हैं कि गूगल, हाउ गूगल इज़ दैट मच पॉपुलर। सो रीज़न इज़ वेरी सिंपल, गूगल इज़ पॉपुलर because it is having specific qualities that it is reaching to all the peoples through language. कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं है। कोई गुजराती है तो गुजराती इंफॉर्मेशंस उसको दूसरी लैंग्वेज नहीं आती हो, then there is an option in Google that you can search in गुजराती। हमारे मोबाइल फ़ोन का एग्जाम्पल ले लीजिए, वी आर हैविंग डिफरेंट कीपैड्स। हिंदी टाइप करना है तो हिंदी टाइप कर सकते हो, गुजराती टाइप करना है तो गुजराती टाइप कर सकते हो, और अगर आपको टाइप नहीं करना है तो थ्रू वॉइस रिकॉर्डर आप गूगल टॉक में बोले तो अपने आप इंफॉर्मेशन टाइप हो जाएगी। सो दैट मच फैसिलिटीज गूगल इज प्रोवाइडिंग टू द डिफरेंट पीपल्स। दैट्स वाई गूगल इज दैट मच पॉपुलर इन द वर्ल्ड that in today's time no other search engine in the world is as popular as Google. Second type of search engine is, हम कैसे एक सर्च इंजन नहीं है, दूसरे भी है, मगर गूगल इज़ द मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन आउट ऑफ ऑल दिस। उसमें सेकंड रैंक पे या दूसरा सर्च इंजन याहू। तो याहू जनरली बहुत पुराना है, गूगल से भी पुराना है, बट याहू वॉज नॉट एबल टू बिकम दैट मच पॉपुलर कंपेयर टू गूगल। Yahoo is also a search engine where you can find different informations related to different web pages. उसके बाद Ask Jeeves, Lycos, Bing and Alta Vista, all are this search engine. तो सर्च इंजन का एक ही रोल है, बहुत सिंपल रोल है। तो ये जितने भी सर्च इंजन है वो अलग अलग कंट्रीज़ को बिलोंग करते हैं, right? So Yahoo majorly it was started from China. Google is from USA. USA में एक सिलिकॉन वैली है जहाँ पे फेसबुक, गूगल, एप्पल, जितने भी MNCs हैं, द टॉप कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड, वो सारी वहाँ पे लोकेटेड है। सिलिकॉन वैली की एक खासियत ये है कि सिलिकॉन वैली इज़ नोन फॉर द कंपनीज हु आर इनोवेटिव कंपनीज विच आर वेरी इनोवेटिव। सो दैट इज़ द एडवांटेज ऑफ एन इंटरनेट। सो दिस आर डिफरेंट सर्च engines which has been available. Out of that, Google is the most popular one. Advantages of internet, disadvantages of internet. We can discuss a lot in this topic. अगर एडवांटेजेस की बात करें तो मैं अपनी एक एग्जांपल्स बात करता हूँ। इंटरनेट को यूज़ करते हुए आई थिंक more than 10 years I have been using internet
or not more than 10 years, but it is more than 15 years I have been using internets, चाहे वो सोशल नेटवर्किंग साइट्स हो, चाहे वो जीमेल अकाउंट्स हो, या कोई भी पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ इंटरनेट में हो, मोबाइल बैंकिंग से लेके, इंटरनेट बैंकिंग से लेके, रेलवे टिकट, एयरलाइन टिकट, बस टिकट, एनी काइंड्स ऑफ पेमेंट्स, मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज और ट्रांसफ़र ऑफ फंड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, जितनी भी एक्टिविटीज़ है वो सब इंटरनेट के थ्रू मैं करता हूँ। तो सबसे ज़्यादा एडवांटेजेस है कि इफ़ आई वांट टू पे ए बिल, मेरे घर का मेरे को बिल पे करना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, देन नाउ इट इज़ पॉसिबल व्हेन यू आर हैविंग एन इंटरनेट। आपको कंपनी के ऑफिस में जाके पे करने की ज़रूरत नहीं है, आपका टाइम सेव हो गया। आज की डेट में इंटरनेट इवन जॉब देता है। कई लोग फ्रीलांसर या ब्लॉग लिख के पैसा अर्न कर सकता है। कई लोग यूट्यूब में वीडियोस बना के पैसा कमाते हैं, राइट। कई ऐसे एग्जांपल्स आपने देखे होंगे कि एक वीडियोस के कारण कोई इतना पॉपुलर हो गया, किसकी पूरी लाइफ चेंज हो गई। सो यू कैन बिलीव व्हाट इज़ द पावर ऑफ दिस इंटरनेट। ये इंटरनेट का पावर इतना है कि रातों रात आपको स्टार बना सकता है, राइट। अगर आप में कोई अच्छा टैलेंट हो, यूट्यूब का फॉर एग्जांपल देखिए कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पॉपुलर वीडियो प्लेटफॉर्म है। तो जनरली उस पर कई चैनल्स हैं, विच आर कुकिंग चैनल्स, विच आर एजुकेशनल चैनल्स, विच आर बिजनेस चैनल्स, विच आर रिलेटेड टू एनी पर्टिकुलर फील्ड। कोई भी फील्ड का एग्जाम्पल ले लीजिए, यू विल फाइंड दैट देर आर चैनल्स फॉर देम। एंड व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस चैनल? The use of this channel is that you will get a specific expertise knowledge out of those topic। तो कहने का मतलब है एडवांटेजेस की मैं बात करूँ, देन वी हैव टू डिस्कस फॉर मेनी आवर्स। इसके पीछे डिस्कस हो सकता है कि किस काम इंटरनेट आपको आ सकता है। आज की डेट में आई कांट बिलीव माई लाइफ विदाउट एन इंटरनेट, बिकॉज इंटरनेट हैज़ जस्ट चेंज माई लाइफ। Life has become very easy, convenient। इतनी easy, convenient लाइफ हो गई है, फास्ट लाइफ हो गई है कि इन दिस इंटरनेट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। और आने वाले 5-10 साल में आप देख सकते हो कि कितना चेंजेस, कितना रेवोल्यूशंस आने वाला है, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्रीज़ हो। और जो पर्सन इंटरनेट से दूर भाग रहा हो, वो एक बात समझ ले कि दे विल नॉट बिकम सक्सेसफुल इफ़ दे विल नॉट बी एबल टू नो इंटरनेट। अगर आपको इंटरनेट चलाना नहीं आता हो तो सीख जाइए, बिकॉज थ्रू इंटरनेट ओनली एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। चाहे ऐसे स्टूडेंट, यू कैन से दैट इफ़ यू वांट टू स्टडी, देन यू हैव टू नो व्हाट आर द कॉन्सेप्ट्स ऑफ और हाउ वी कैन सर्च इन इंटरनेट्स। आपको कोई वेबसाइट सर्च करनी, आपको कोई नोट्स बनाने हो, आपको कोई कॉलेजेस के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो सारी इंफॉर्मेशंस आपको थ्रू इंटरनेट यू विल बी एबल टू गेट। तो एडवांटेजेस की बात करें तो इट इज़ एडवांटेजेस इन एवरी फील्ड, चाहे आर्ट्स हो, क्रिकेट हो, बिजनेस हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, इलेक्ट्रिकल हो, राइट, म्यूज़िक हो। In every particular field you will find that internet is advantageous। और जिस तरीके से हर चीज़ के एडवांटेजेस है, उस तरीके से उसके डिसएडवांटेजेस भी है। इफ़ वी से अबाउट डिसएडवांटेजेस, देन इंटरनेट इन टुडेस की कई क्राइम्स भी इंटरनेट के थ्रू हो रहे हैं, कई फ्रॉड इंटरनेट के थ्रू हो रहे हैं, राइट। आप देख सकते हैं कि आजकल ऐसे फ्रॉड आने लग गए कि थ्रू टेक्स्ट मैसेज, राइट, आपको कोई मैसेज आया हो, उसके ऊपर आपको लिंक दिया हो, लिंक क्लिक करिए तो बैंक से आपके पैसे निकल सकते हैं। तो इंटरनेट का एडवांटेजेस भी है, पर इंटरनेट का डिसएडवांटेजेस ये भी है
कि आप अगर उसको गलत तरीके से यूज़ करें देन इट इज़ गोइंग टू बी डेंजरस। कई सोशल नेटवर्किंग साइट्स है जिनमें कई लोग फेक आईडीज़ बनाते हैं, फ्रॉड करते हैं, राइट। तो दैट थिंग इज़ डेंजरस। हम कश्मीर में देखते थे कि थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप वो लोग आपस में नफरत फैलाते थे, राइट। पॉलिटिक्स में इंटरनेट यूज़ होता है बाय पॉलिटिशियंस फॉर स्प्रेडिंग हेट्रेट्स एमंग पीपल्स। तो जितने एडवांटेजेस भी है साथ में डिसएडवांटेजेस भी है इंटरनेट का। टुडेज यूथ, आज की जनरेशन यूथ इंटरनेट को सही तरीके से अगर यूज़ करे देन दे आर गोइंग टू गेट लॉट मोर बेनिफिट्स। अगर वो सही चीज़ या सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे देन इंटरनेट इज जस्ट ए वेस्ट फॉर देम, राइट। सो thank you everyone, right, for office automation subject lecture. We will meet again in next lecture with new topic.